ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कॉन्वेंट स्कूल की, जहां पर आपको बता दें कि परमवीर सिंह जो कॉन्वेंट स्कूल का छात्र है, उसने ना सिर्फ करनाल ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर का नाम रोशन किया है। जी हां, आपको बता दें कि करनाल से परमवीर का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्कॉलरशिप उसे दी गई है। 2 करोड़ की ये स्कॉलरशिप है। और आपको बता दें कि पूरे भारत से 4 बच्चे केवल सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि परमवीर करनाल से उसे यूनिवर्सिटी द्वारा चुना गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर से हज़ारों जो बच्चे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन गिनती के जो स्टूडेंट हैं उन्हें यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप देती है, जिसमें आपको बता दें कि करनाल के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले जो परमवीर सिंह हैं उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने 2 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या कुछ परमवीर के टीचर का, पेरेंट्स का कहना है, देखिए तस्वीरें। Includes a matter of pride for me as the principal of the school to announce that Param, class 12th, session 21-22 of St. Teresa's Convent School, Karnal, has brought laurel to the institution by securing 1530 marks out of 1600 marks in Scholastic Assessment Test, which was a standardized examination conducted by College Board for admissions in undergraduate students to foreign universities. He has been placed the first one in 1% of successful students throughout the world. I am proud to say that he is our student and he has brought glory to this institution, both in academic and in non-academic, be it SAT examination, be it IELTS, or to the community service, which has awarded him with the B. Pearson International Scholarship Award. He has been given the scholarship approximately rupees 2 crores for his further studies to University of Toronto, Canada. I am proud to say that he is the only student from Haryana who has been awarded for this prestigious award or for this prestigious scholarship. As a Theresian, I wish him all the best for his future endeavor. Above all, God's blessings, and may he carry the values of this school where I have been awarded the Lester B. Pearson International Scholarship at University of Toronto. The scholarship is awarded to only 37 students from entire world. All of the students who apply to University of Toronto, there is created a pool and students are selected from there. Only 37 students, and each of them get full scholarship for tuition, housing, residence, and even meals. Everything is decided, everything. The winners of the scholarship are decided by a lot of factors, I'd say. Academic success, the personality of the student, and his extracurricular activities. The upbringing by the school and my parents allowed me to excel in all of these. First of all, in academics, the teachers of the school, with their proper guidance, I was able to score around 90% in each class, I'd say, from the beginning of the school. That helped, and then I scored 8 bands in IELTS exam, around 1530, which came in the top 1% of the world in the SAT. Then we speak about extracurriculars, and that I'd say with support from the school staff and guidance from my father, I was able to create a world record in my campaign Speak Up Friends. The main reason why I got this scholarship was my initiative against drug and child abuse. The initiative was named Speak Up Friends, and in which we garnered support from around 10,000 students from across India, and we moved against drug and child abuse. We also provided support in care classes NIFA, which are run by NIFA in 32 sector Karnal. We provided medicines to people living in the slums, and we can say that we were able to help people living there overcome their addiction of drug and child abuse. That was one of the main factors that helped me secure this scholarship. Now, I'd say that this scholarship holds a huge status, and this is a matter of pride for our school, and I'd say entire city Karnal, and not just Karnal, I'd say entire India.
Me to study at University of Toronto. Like I could not even think of studying at University of Toronto without this scholarship. So University of Toronto, let me tell you, is ranked #1 in Canada and comes in top 20 of the entire world. Even IIT is not ranked as high as that. So I believe this is a very high achievement, and it could not be done without support from my parents, school staff, and guidance from everyone. Thank you. और मेरे परिवार की ओर से मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, जिनके कारण हम आज यहाँ पर हैं, उनकी ओर से मैं सबसे पहले सिस्टर प्रिंसिपल का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लेस्टर बी पियर्सन स्कॉलरशिप है वो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वो केवल स्कूल ही नॉमिनेट कर सकता है अपने किसी भी बच्चे को। उसको लगता है कि ये बच्चा इसके लिए एलिजिबल है तो केवल स्कूल ही नॉमिनेट कर सकता है। तो आई एम थैंकफुल कि स्कूल ने मेरे बच्चे को इस लायक समझा कि वो इसको नॉमिनेट करें। अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी इंफॉर्मेशन है, लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे पूरे वर्ल्ड से हर साल अप्लाई करते हैं। 8 से 10 हज़ार बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया से, और आउट ऑफ विच जिसमें से 37 to 38 बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। इस साल 37 बच्चे इस साल सिलेक्ट हुए हैं। मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा क्योंकि मीडिया को सारी जानकारी होनी चाहिए। इंडिया से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्ची चंडीगढ़ से है, एक बच्ची पंजाब से है, एक लड़का हिमाचल से है और हरियाणा से परमवीर है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, हरियाणा से आज तक का ये पहला बच्चा है। जब से ये बी पियर्सन स्कॉलरशिप शुरू हुई है तब से आज तक का ये पहला बच्चा है जिसको ये स्कॉलरशिप मिली है। जैसा जसवंत जी ने बताया कि उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पियर्सन उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके नाम पर एयरपोर्ट भी है। जब वो टोरंटो जाते हैं तो बी पियर्सन एयरपोर्ट, सारा फंड यूनिवर्सिटी को दे दिया था कि इस फंड से हर साल जो वर्ल्ड के ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको सपोर्ट की जाए। और इसमें जैसे बताया गया कि सारा क्राइटेरिया, सारे एंगल जो है वो लिए जाते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि ये परमात्मा की एक हमारे परिवार के ऊपर बख्शिश हुई है। मैं इसे ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड लेकर चलता हूँ। और एक छोटी सी कहानी जो मैंने पहले दिन अपनी वाइफ को सुनाई थी, जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने अपनी वाइफ को एक कहानी सुनाई थी। बस वो कहानी आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे दिल की भावना है, आप समझ जाएंगे। कबीर जी की बेटी की शादी थी। 3 दिन 4 दिन शादी में रह गए थे और घर में कोई इंतजाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। माता लोही जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बहुत परेशान थी कि कबीर जी 4 दिन बेटी की शादी में रह गए हैं, घर में कोई टेंट नहीं, कोई खाने पीने का सामान नहीं, कोई कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, कुछ नहीं, बेइज्जती बहुत होगी, क्या कर रहे हो आप, कहीं से जाओ, कहीं से अरेंजमेंट करके लेके आओ। तो कबीर जी घर से निकले, जंगल में गए, जंगल में जाकर उनकी समाधि लगी परमात्मा के नाम पर। 4 दिन वो परमात्मा के नाम में बैठे रहे। 5वें दिन उनकी समाधि टूटी, वापस निकले, किसी से पूछा आज कौन सा दिन है, बोले आज ये दिन है। तो बहुत परेशान हुए कि कल तो बेटी की शादी थी, बहुत बेइज्जती हुई होगी, बारात वापस चली गई होगी। तो जब वो वापस घर पर आए तो देखा सामने बहुत चहल पहल है, कई रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सजावट हो रही है, खाने पीने का काम चल रहा है। शादी के बाद का 1 दिन का जो माहौल होता है वो पूरा माहौल था। तो सामने से माता लोही नजर आई। बोली आप कहाँ चले गए थे अभी थोड़ी देर पहले? बोले थोड़ी देर पहले। अच्छा, बोले कपड़े कब चेंज कर आए? बोला कपड़े कब चेंज कर आए? अभी आपने इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और सारा गांव आपकी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इतना बढ़िया आपने इंतजाम, रात इतनी खुश करके आपने भेजी, नए कपड़े पहने थे, अब जाके फिर वही पुराने कपड़े पहन के आ गए। तो कबीर जी साइड पे बैठ के जाके रोने लग गए। जब रोने लग गए, माता लोही ने जाके पूछा भी क्या हुआ? तो बोले वो जो 4 दिन यहाँ था वो मैं नहीं था, जिसके काम में मैं लगा हुआ था वो मेरे काम में यहाँ लगा हुआ था। तो मैंने अपनी वाइफ को यही कहा कि परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। बोलता जो मोह होता है वो अपने गहनों का होता है। इसने अपने मायके के गहने भी और ससुराल के गहने भी सारे उठा के दे दिए निभा की गतिविधियों के लिए। तो जब पूरा परिवार जो है लगा हुआ था तो मैंने कहा ये जो हमने किया इतने सालों में, ये परमात्मा ने एक झटके में हमें जो है उसका सारा जो है प्रतिफल दिया है कि अगर आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कुछ मानवता के लिए कर रहे हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपकी वो सपोर्ट जरूर करता है। तो वो कहानी मैंने अपनी वाइफ को सुनाई थी, मुझे लगा मैं मित्रों के साथ शेयर करूँ क्योंकि वो मेरे दिल की भावना है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सारा कुछ जो है ये हमारे पिताजी, मेरी माता को भी थोड़ा सा उनको पैरालिसिस है, उनको भी लाना चाह रहा था पर वो नहीं आ सकते। ये उनका जो उन्होंने बचपन से हमें सिखाया, जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग करी, इनसे जो कुछ सीखा वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये बच्चे को उपलब्धि मिली है, मैं इस उपलब्धि को मेरे परिवार की तरफ से करनाल के समाज को, देश को समर्पित करता हूँ कि ये करनाल के समाज की, स्कूल की और देश की उपलब्धि है। और इसके लिए मैं, जहाँ हमें तो बधाई मिल ही रही है, लेकिन आप सभी को भी मैं इसके लिए बधाई का पात्र मानता हूँ और आप आने के लिए दिल से बहुत बहुत